on your video. Turn on your video, everyone. Abhay, Abhishek, Karan, Jagriti, Karan, Abhay, Karan and Abhay, they are not doing on. Those who are not doing the on your video, they will be absent today. Remember it. I will mark absent. Neha, turn on your video. यस सर कर करण, रहा हूँ। करण कौन है? ये करण कौन है? टर्न ऑन योर वीडियो, करण। सुमित कुमार शर्मा, my dear students, as you know that it is very essential. Each and everyone have to do it. It is mandatory. Now let us see. Here I am going to start the class. My dear students, yesterday I taught you how the writer is very fond of animals. In his home, there are two Alsatian dogs. And one more, what he brought in home, that is a baby bear. It shows that how the writer and his wife were both very fond of animals, pets. They were giving a lots of love to them because they know that what is the importance of animals. Animals are our best friend. They also live in the society. They are also like a human being. That's why when the baby bear was in a problem, then the writer brought it at home and he pet it. He feed. He gave everything like as a fruits, milk, vegetables, meat, liquor, everything what it needed. And now he's feeling very happy in the home of writers. But you saw how one day the baby bear was in a great problem. What had happened with him, you know very better. How he have to go to the veterinary doctor. As I made you understand, veterinary doctor, those who see the animals, जानवरों के डॉक्टर, उन्हें ले जाना पड़ता है. Why? What was the reason? So that the writer have taken it to the veterinary doctor. क्या कारण है उन्हें वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा? You know very better. I taught you yesterday in this story. Here, the doctor is giving him a injection. Not only a very simple injection, it was a very big injection because the dog was suffering from the paralysis. His one part was unconscious. He was unable to stand its own. That's why the writer is taking him in the veterinary doctor. How he became paralyzed, you know very better. Because he had taken a, what chemical he had taken? Barium carbonate. Barium carbonate, which is a very dangerous chemical. And as per the symptom, those who take it, obviously they have to suffer from the paralysis. This is the side effect of the barium carbonate. And the same had happened with the baby bear. So till here, yesterday I taught you. Now let's see the more what is going to be. Now here, my dear children, I am going to share the screen. So please wait here.
Number 10. Again, I would like to repeat this one. So let us see. Now I am going to start number 10. Hold him, everybody. Hold him, everybody. It means the injection what is going to be given to the baby bear. Really, it was a very hard, very difficult to take this injection. That's why the doctor told hold him. इसे कस के पकड़ो. Hold him, everybody. In goes the hypodermic. Hypodermic, I made you understand yesterday. It is a very big, long injection. It's a long injection. That's why doctor is saying here, hold him, everybody. In goes the hypodermic. Bruno squeals. Bruno squeals. Squeals means scream. Here, squeal means scream. Means chillana. Squeal is a new word for you. So try to collect what the difficult words is coming. So squeal it means scream. Bruno squeals. वो चिल्लाता है. 10 cc of the antidote enter his system without a drop being wasted. Means what the amount of injection had been given, it has been shown over here. And it was an antidote. Yesterday I made you understand what the meaning of antidote. Antidote is a medicine for in counteract. In counteract means one kind of a antibiotic. उस बीमारी को दूर भगाने के लिए उसे देना पड़ा. Being wasted, drop being wasted. 10 minutes later, condition unchanged. 10 मिनट हो गए लेकिन कंडीशन अभी वैसा का वैसा ही बना हुआ है. Unchanged, not changed. Another 10 cc injected. फिर 10 cc जो है ये खुराक फिर उससे दिया गया. 10 minutes later, breathing less statius. Breathing less स्टेटियस. स्टेटस मीन्स नॉइजी. माने धीरे धीरे की जो सांस है उसमें आवाज आने लगी. स्टेटस मीन्स अ साउंड. ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म एंड लेग्स अ लिटल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट. नाउ ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म मीन्स देयर वाज अ समथिंग एक्टिविटी इज बीन सीन इन हिज बॉडी. उसके शरीर में कुछ जो है चहल पहल एक्टिविटी जो है स्टार्ट हो गए. दूसरा बार जब इंजेक्शन देना पड़ा, पहले तो 10 cc इंजेक्शन लगा, कोई फर्क नहीं पड़ा. फिर 10 cc इंजेक्शन, ये अमाउंट है. इंजेक्शन अमाउंट होते हैं ना, जैसे एक सीसी में रखे रहते हैं तो कितना देना है ये तो डॉक्टर को पता होता है. यदि हम ज्यादा डोज देते हैं तो उसका जो है साइड इफेक्ट भी होता है. तो डॉक्टर ने पहले 10 cc दिया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा. अनदर 10 cc देना पड़ा. उसके बाद कुछ हरकत जो है देखने को मिलता है ब्रूनो में. उसके बाद अभी भी वह खड़ा नहीं हो सकता है. He cannot stand yet. फिर भी वह खड़ा नहीं हो सकता. 30 minutes later, Bruno gets up and has a great feed. 30 मिनट के बाद, मतलब आधे घंटे के बाद ब्रूनो खड़ा हो जाता है और उसे भूख लगती है. Has a great feed. माने खाने की इच्छा हो जाता है. He looks at us disdainfully as much as to say what is barium carbonate to big black bear like me. वो फिर घमंड से यहाँ बोलता भी है. Let's see here. जब वो ठीक हो जाता है तो वो फिर बोलता भी है, What is barium carbonate to a big black bear like me. मेरे जैसा काले बड़े भालू को यह बेरियम कार्बोनेट क्या कर सकता है. ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग. अब भी ब्रूनो खाना शुरू कर देता है. जब ब्रूनो को पैरालिसिस हो गया उस समय कुछ नहीं बोल रहा था, बिल्कुल अनकॉन्शियस है.
लेकिन जब वो ठीक हो जाता है तब फिर जो है उसे अपनी ताकत पर जो है वो घमंड हो जाता है और ये बोलता है कि ये जो केमिकल मुझे कुछ नहीं कर सकता है। मेरे जैसे ब्लैक काले बियर को ये जो है केमिकल क्या कर सकता है? नथिंग कैन डू, कुछ भी नहीं कर सकता है। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, अब वो खाना शुरू कर देता है। अनदर टाइम he found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of the stood baker and was keeping as a weapon against in road of termili just a minute termite. He promptly drank the lot, but it had no ill effect whatever. Another incident. Yeah, sorry for inconvenience today. It was a call. Yeah, तो I told here कि another incident is going to be held here. दूसरी घटना घट रही है। क्या दूसरी घटना घट रही है? पहली बार तो आपने देखा उससे पैरालिसिस हो गया। क्यों हो गया? बेरियम कार्बोनेट खाने से हो गया। अब दूसरी घटना क्या हो रही है? लेट्स सी। अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल। इंजन में जो ऑयल डालते हैं वो गैलन में रखे जाते हैं, पता ही है आप सबों को। वो रखा हुआ था which I had drained from the sump of the stood baker and was keeping as a weapon against the inroad of termites. टर्माइट क्या है? दीमक। जो घरों में दीमक लग जाते हैं ना बेटा, दीमक को मारने के लिए मैं 1 गैलन में इंजन ऑयल लाया था, उसे रखा हुआ था अगेंस्ट द इनरोड ऑफ द टर्माइट्स। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट, वह एक ही बार में तेजी से क्या किया? वो पी गया। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, तो ड्रैंक द लॉट बट इट हैड नो इल इफेक्ट वट एवर, लेकिन उसका कोई बैड इफेक्ट नहीं हुआ। अनइफेक्टेड, इल इफेक्ट, नो इल इफेक्ट मीन्स अनइफेक्टेड, नो एनी इफेक्ट वाज ऑन इट आफ्टर ड्रिंकिंग a lot of engine oil. There were no any effect on the BS body. उसके शरीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि वह पूरे गैलन जो है इंजन ऑयल को वो गटक गया, पी लिया। और इंजन ऑयल किस काम के लिए लाए गए थे? वह इंजन आया घर में जो दीमक लगते हैं ना, दीमक, उसे मारने के लिए राइटर ने अपने घर में ला करके उसे रखा था गैलन में। और वो क्या किया भी है? उसे पी गया। हेलो, आवाज तो आ रही है हमारे क्लास से बच्चों को? किसी घर से आवाज आ रही है बेटा? यस सर, न्यूज़ देख रहा है कोई। हाँ तो ऑफ कर लो बेटा, वो तो पेरेंट्स तो देखेंगे, पेरेंट्स है तो देखेंगे ही, लेकिन हमारा ड्यूटी क्या है? ऑफ कर लेना। सर मेरा नहीं है सर, सर मेरा नहीं है, मैं बता रहा हूँ सर। हाँ गुड बॉय, गुड। किसी का भी हो प्लीज बेटे, प्लीज लिसन टू मी, नो प्रॉब्लम। वो तो पेरेंट्स है देखेंगे, उनका काम है देखना, है ना। आप उसे क्यों, कोई भी बच्चे हैं ऑफ कर लीजिए साउंड को, ठीक है? अदरवाइज कांट अंडरस्टैंड व्हाट द स्टोरी इज गोइंग ऑन, सो प्लीज ऑफ इट नाउ, लिसन टू। बट इट हैड नो इल इफेक्ट वट एवर, लेकिन उसका कोई भी इल इफेक्ट मतलब बैड इफेक्ट, अनइफेक्टेड, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। द मंथ्स rolled up and Bruno had grown many times the size of the way when he came. The months rolled up माने महीनों बीत गए। The months rolled on and Bruno had grown many times the size he was when he came. और जो स्टार्टिंग में आया था, जो साइज था उसका, जो आकार था, जो शेप था, उससे कई गुना अब
आज वो बड़ा हो चुका है बियर, क्योंकि उनके घर में आए हुए बहुत महीने हो गए, तो खाने पीने की कोई तो प्रॉब्लम थी नहीं राइटर के घर में। वो खा पी के अब वो क्या है, वो बड़ा बन गया था। He had equaled the Alsatian in height and had even outgrown them. अब उसकी जो हाइट है एल्सेशियन जो डॉग है उससे भी बड़ी हो गई थी। एंड हैड इवन आउटग्रोन देम, उससे भी वह पीछा कर दिया। मतलब भालू की जो हाइट है वह एल्सेशियन जो डॉग होते हैं लंबे लंबे, उससे भी भालू अब बड़ा हो चुका था। But was just as sweet, just as mischievous, just as playful, and he was very fond of us all. लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ फिर भी कोई बैड इफेक्ट, मतलब घर पर कोई परेशानी जो है वो नहीं किया, मतलब न्यूसेंस जो है वो नहीं कर रहा है, फिर भी जो है सबके लाडले, सबके प्यारे, स्वीट, मीठा, मिस्चीवियस, वैसा ही जो है गुदगुदी करना, जस्ट ए प्लेफुल, सबके साथ मिल करके खेलना। ऐसा नहीं कि भालू बड़ा हो गया तो नुकसान पहुंचाने लगा घर में, नहीं, वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, अभी भी स्वीट है, अभी भी प्लेफुल है, अभी भी मिस्चीवियस है, सबके साथ वैसा ही अभी जो है वो फन करता है। एंड ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और वो सबका फॉन्ड था, मींस एवरीवन इज बीइंग लव्ड बाय बेबी बियर। नाउ ही इज नॉट बेबी, ही हैव ग्रोन अप, अब तो बड़ा हो गया, फिर भी उसमें किसी प्रकार की कोई शैतानी हरकत नहीं है। Above all, he loved my wife and she loved him too. सबसे ज्यादा वो मेरी पत्नी को प्यार करता था और मेरी पत्नी भी उसे खूब प्यार करती थी। She had changed his name from Bruno to Baba, a हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय। अब उनकी पत्नी ब्रूनो का नाम चेंज करके उसका नाम रखती है बाबा, और हिंदुस्तान में बाबा का मतलब होता है स्मॉल बॉय। बाबा बोलते हैं प्रेम से, क्या बोलते हैं, बाबा। तो उनकी पत्नी ने जब बड़ा हो गया, ग्रोन अप हो गया, तो उनकी पत्नी ने ब्रूनो से नाम चेंज करके बाबा रख दी, जिसका मतलब होता है स्मॉल बॉय। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू at the command Baba wrestle or Baba box, he vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumble. यदि उस घर में कोई भी गलत काम करता था उसको वह अच्छी तरह से जो है वो टैकल करता था। He vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumble. Rough and tumble माने कोई बुरा बर्ताव यदि करता था उसके साथ में, वो अच्छी तरह से टैकल करना जानता था। Give him a stick and say Baba, hold gun, and he pointed the stick at you. यदि कोई कह दे, घर के कोई सदस्य ये बोल दे कि आप इसके ऊपर ये स्टिक या कोई चला दो, तो क्या करता था, वह तुरंत किसी के ऊपर जो है वो तैनात हो जाता था। एंड पॉइंटेड द स्टिक एट यू। आस्क हिम बाबा वेयर इज बेबी, बाबा बेबी कहाँ है। एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड cradled affectionately a slump of wood which he had carefully concealed in his straw bed. उनके घर में एक छोटा बच्चा होता है, यदि किसी को बच्चा नहीं मिलता है तो जो है दौड़ करके बियर उसे खोज करके लाकर सामने में पालने से, क्रैडल मतलब पालना जिसमें बच्चे झूला झूलते हैं, वो उठा कर ला करके और तुरंत सामने में हाजिर कर देता है। मीन्स ये है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं घर में, उनके भी वो सब लाडले बन चुका है। सभी बच्चे भी प्यार करते हैं, बच्चे भी उनसे डरते नहीं हैं, और यदि कोई बच्चा कहीं गुम हो जाता है उसे खोज करके वो सामने में ला करके हाजिर कर देता है। बट
because of the teenage children, poor Bruno, our Baba, had to be kept chained most of the time. लेकिन चूंकि कुछ किराएदार के जो बच्चे थे, टीनेंट्स, एज यू मेड यू अंडरस्टैंड स्टडी, टीनेंट्स जो कुछ किराएदार के बच्चे थे, वो बच्चे कुछ शैतानी करते थे, उन बच्चों से को बचाने के लिए बाबा या ब्रूनो को चेन में बांध कर कभी कभी रखना पड़ता था, वरना वो बच्चे जो है वो शैतानी करने लगते थे इसे। अब उन बच्चों को भी ये छेड़छाड़ करता होगा, कभी हो सकता है बच्चे छोटे होंगे तो उसको नुकसान भी कभी कभी पहुंचा देता होगा। इसलिए अब क्या किया गया, जब बड़ा हो गया तो ब्रूनो या मतलब बाबा को चेन में बांध कर लोग रखने लगे उसके घर पर। अब धीरे धीरे उस पर लोग जो है अपना जो है अधिकार जमाना शुरू किए और उसे बांध कर रखने लगे चेन में। सर देन उसको चैन में क्यों बांध के रखते थे? जो पड़ोसी के बच्चे थे, मतलब टीनेज जो है ना, कभी कभी उनके साथ जो है ना या मिसबिहेव कर देता होगा, क्योंकि ये तो अपने घर के सदस्यों के साथ इसका बर्ताव अच्छा था ना। गॉट, जो अपने घर के जो होते हैं उसको तो इस सदस्यों को जानता था, लेकिन मान लीजिए कोई किराएदार बच्चे हैं, पड़ोस में बच्चे हैं, वो तो नहीं जानता था उन सबों को, तो हो सकता है उनको नुकसान पहुंचा देता होगा। इसलिए जो है, जैसे मान लीजिए आपके कुत्ते हैं, तो आप देखेंगे अपने घर में कुत्ता घर के सदस्य को क्या करता है, खेलता है ना, लेकिन जैसे ही बाहर लाने की कोशिश करते हैं आप चैन में बांध के पकड़े रहते हैं उसे कस करके। क्यों? क्योंकि उन सबको तो नहीं जानता है कुत्ता ना, हो सकता है किसी को नुकसान पहुंचा दे, अपने मेंबर को तो जानता है। तो उसी प्रकार से एक क्या किया गया, जब बड़ा हो गया तो उसे अब चेन में बांध कर, क्योंकि पहले खुला था और हर जगह जा सकता था, आ सकता था, कोई पाबंदी नहीं थी, फ्रीडम था। लेकिन जब से बड़ा हो गया और उसे चेन में बांध किया गया ताकि पड़ोस के बच्चों को वह नुकसान न पहुंचा सके। क्लियर? यस सर। या सॉरी बेटे, आप सफेद कफ। देन my son and I advised my wife and friends advised her to give Baba to the Jew at Mysore। जब बड़ा हो गया तो मेरा बेटा और खुद मैं और मेरे दोस्त मेरे पत्नी को सलाह दिए कि आप अब इस बियर को आप जू में दे दीजिए। मैसूर में जू समझते ही हैं, चिड़ियाघर है। अब ले Yes, आकर sir. आप उसे दे दीजिए, क्योंकि यह बड़ा हो चुका है, हो सकता है अब जो है इसका बर्ताव धीरे धीरे हो सकता है बिहेवियर में चेंजिंग आएगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं बेटा, तो छोटे बच्चे तो हर जगह टैकल कर सकता है, कोई भी हैंडल कर सकता है, लेकिन वही बच्चा जब 18 साल से बड़ा होता है तो उसके ईगो, उसका प्राउडनेस है, एंगर, वो थोड़ा क्या है, वो जो है बर्दाश्त नहीं होते हैं। तो अब इनके मन में ये आया कि अब ये जो है बियर बड़ा हो गया है, अब कहीं ऐसा ना हो कि कोई शैतानी करने लगे, इसलिए इसे कहाँ देना चाहिए, ले आकर के जू में दे देना चाहिए। इन सबों ने मिलकर अपनी पत्नी को सलाह दी है ये मैसूर में। He was getting too big to keep at home। अब वो लगातार जो है बड़ा होते जा रहा था। He was getting too big to keep at home। वह इतना बड़ा हो गया कि अब घर में रखना उचित नहीं लग रहा था राइटर को, नॉट सुटेबल इट। After some weeks of such advice, she at last consented। कुछ सप्ताह के सलाह के बाद अंत में उनकी पत्नी उनकी बातों को मान जाती है। Hastily and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo। curator मतलब केयर टेकर। ले जाने से पहले जू की जो केयर टेकर हैं, माने मेन जो सदस्य होते हैं, उसको एक चिट्ठी लिखा गया पहले। ऐसे तो आप नहीं ले जाएंगे ना, किस चीज पर ले जाएंगे, कोई साधन तो है नहीं, भालू तो बड़ा हो गया, तो भालू को ले जाने के लिए कोई पिंजरा चाहिए,
और ऐसे तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं जू वाले ना, पहले उन्हें चिट्ठी लिखना पड़ता है, वो आते हैं और फिर जो है वो सर्वे करते हैं, उसके बाद जो है अपने हिसाब से उसे कैद करके ले जाते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, वो चिट्ठी लिखा गया, जो क्यूरेटर है मैंने टेकर केयर ना, केयर टेकर जो है देख रेख करने वाला, उसे जो है लेटर लिखा गया पहले। डिड ही वांटेड टेम बियर ऑफ ही कलेक्शन, क्या उसे टेम बियर चाहिए, मतलब पालतू भालू चाहिए अपने चिड़ियाघर के लिए। ही रिप्लाइड यस, द जू सेंट ए केज फ्रॉम मैसूर इन ए लॉरी, a distance of 87 miles and बाबा was packed off। लेटर मिलने के बाद जो चिड़ियाघर वाले हैं उनके घर में केज भेज दिए। केज फ्रॉम मैसूर इन ए लॉरी, लॉरी मतलब होता है एक प्रकार का गाड़ी होता है जिसके ऊपर चढ़ाया जाता है, उतारा जाता है केज को। तो वो जो है चिड़ियाघर वाले इनके घर में एक केज भेज दिया और फाइनली भालू को उसमें पैक कर दिया गया। एंड बाबा वाज पैक्ड ऑफ, अब जो है बाबा को पैक कर दिया गया। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, हम सब काफी मिस कर रहे थे। बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड, लेकिन जो हमारा सेंस था, मतलब हमारा जो मन था, जो ज्ञान था, नॉलेज, वो जो है वो रिलीफ दे रहा था। क्यों रिलीफ दे रहा था? क्योंकि हमें समझ में आता था कि अब ये जो भालू है जो इतना बड़ा हो गया, उसका जगह जो है वो जू ही हो सकता है, घर नहीं हो सकता है। तो कुछ लोग यह जान करके जो है खुश भी थे। माई वाइफ आज इनकंसोलेबल, कंसोल करना, कंसोल मैंने मतलब क्या है, जैसे हम कोई रोता है तो आप हम जाके उसे चुप कराते हैं, जब कोई दुख में होता है हम उसे इंकरेज करते हैं, तो उसको बोलते हैं कंसोल करना। लेकिन यहाँ क्या है, इनकंसोल है, इनकंसोलेबल, मतलब मेरी पत्नी जो है ना, वो जो है हमेशा और हमेशा जो है उसी में ख्याल में डूबी रहती थी, मैंने हमेशा एक्सक्यूज मी भालू के सर। बारे में सोच। यस सर, बोलिए। सर मेरे को एक डाउट है सर। हाँ बोलिए सर। सर मैं भी होम टाउन में हूँ, बट मैंने एग्जाम दिया था ऑनलाइन। यस सर, व्हाट्स योर नेम सर? सर शिवम शर्मा। शिवम बाबू, यस शिवम बोलिए। सर मैंने एग्जाम दिया था सर, बट ओवरऑल सब्जेक्ट में सर मेरे को 0 ही दिया गया है हर सब्जेक्ट में। सर क्यों? शिवम शर्मा है ना आपकी? यस सर, हर सब्जेक्ट में मैंने 0 नंबर सर। मैंने सुनेंगे मेरी बात को, यस सर। मैंने 3 दिन पहले आपकी कॉपी चेक करके मैंने मैम को दे दिया इंग्लिश। यस सर। इसलिए कौन बोल रहा है? कोई टॉकिंग शिवम। यस आ- सर। आ- आपने जो सबमिट किया बेटा ना, वो क्या हुआ था, वो स्ट्रीम में आपने भेजा था, जबकि क्लासरूम में भेजा जाता है। सर आपकी अर्चना मैम ने बोला था। अर्चना मैम ने ये नहीं बोला था, अर्चना मैम ने कहा था गूगल क्लासरूम में भेजने के लिए आपका मिस्टेक से आप नहीं जानते थे उसको जो है आप पीडीएफ बनाना, इसलिए आप जो है स्ट्रीम में भेज दिए। सर मैं हमेशा अर्चना मैम को पर्सनल मैसेज कर दिया करता था, उन्होंने ही बोला था पर्सनल मैसेज करने को। हाँ तो वो कॉपी जो है मैंने चेक करके इंग्लिश का आपका दे दिया बेटा। यस सर। अब आपकी इंग्लिश के जो मार्क्स है ना, वो यस सर। ऑफिस में पहुंच चुका है, बाकी जो सब्जेक्ट है आपके वो बाकी टीचर जमा कर देंगे, तो आपको ओ। कुछ दिन में रिजल्ट आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, बट इसके लिए आप जो है मैम को याद दिला देना, वो जो है सारे टीचर को, जो सब्जेक्ट वाइज टीचर है उनसे वो नंबर ले लेगी। बट वट एवर आई हैव बीन गिवन, आई हैव चेक्ड एंड आई हैव सबमिटेड योर मार्क्स इन द ऑफिस। यस सर। आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। ओके, गॉट? यस सर, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू शिवा। व्हेन आर यू कमिंग? सर आफ्टर 10 days। Okay, fine. Let's see. Okay, Mm. Shivam, thank you. So you saw how now the bear is in a zoo. अभी आपने देखा किस प्रकार से राइटर जो है वो बियर को
किसी जू वाले को देते हैं, जू वाले ने घर में इन्हें जो है केज भेजते हैं, उसमें वो पैक किया जाता है और फाइनली वो वहां पर चला जाता है। इससे जो है राइटर जो है काफी खुश होते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं कि उसका जगह जो है वही है। लेकिन की पत्नी जो है वो काफी सदमे में है क्योंकि पत्नी जो है वो बहुत प्रेम करती थी उससे, अपने बच्चे की तरह उसे पाली थी। इसलिए जो है आज भी पत्नी को वो जो है बियर का ख्याल जो है बहुत आ रहा है। इनकंसोलेबल, उनको समझाने में बहुत मुश्किल हो रही है राइटर को, अपनी पत्नी को वो समझा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो बार बार जो है उसे ख्याल आ रहा है बियर के बारे में। सी वेप्ट एंड फ्रेटेड, वह रोती गई, वह रो रो करके अपना बुरा हाल कर ली। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट अ थिंग, करा पहले एक आध सप्ताह तो खाना भी नहीं खा पाई। उनकी पत्नी बियर के जाने से बेटा कुछ सप्ताह जो है वो खाना भी नहीं खाती है। देन शी रोट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर, इसके बाद फिर क्या करती है, वो लेटर लिखना शुरू करती है उसी क्यूरेटर को। हाउ वाज बाबा, बैक केम द रिप्लाई, वेल बट फ्रेटिंग, ही रिफ्यूजेज फूड टू। जवाब आया पहले कि वह अच्छा है, लेकिन फिर लिखा गया बट फ्रेटिंग, ही रिफ्यूजेज फूड टू, लेकिन वह उदास है और खाना खाना जो है स्वीकार नहीं कर रहा है, रिफ्यूज कर देता है भोजन खाना। जब कुछ दिन तक उनकी पत्नी को मन नहीं लगा, इसके बाद वह लेटर लिखती हैं क्यूरेटर को कि मेरा बियर कैसा है। उधर से जवाब आता है कि वह अच्छा है लेकिन यह उदास है और खाना जो है नहीं खा रहा है, रिफ्यूजेज फूड टू, वह रिफ्यूज करता है फूड को। आफ्टर दैट फ्रेंड विजिटिंग मैसूर were begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. जवाब तो आ गया, लेकिन क्या सुनने को मिला कि वह बियर जो है खाना उना छोड़ दिया है, खाना नहीं खा रहा है। आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर, वो जो दोस्त थे उनके वो कहाँ जा रहे हैं, मैसूर। वर बेग्ड टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू एंड सीइंग हाउ बाबा वाज गेटिंग अलोंग। इस प्रकार उसके दोस्त ने रिक्वेस्ट किया कि हम सब वहां आ करके और बाबा से मिलना चाहते हैं। उसने तो दे दिया जू वाले को, फिर जो है हाल चाल जानना चाहते हैं। फिर फाइनली ये जो है अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि हम बाबा से मिलना चाहते हैं। They reported that he was well but looked very thin and sad. उन्होंने रिपोर्ट दिया कि बाबा तो अच्छा है, well but looked very thin and sad, लेकिन बहुत दुबला पतला हो गया है और उदास दिखाई पड़ता है। All the keepers at the zoo said he was fretting. जितने भी रख रखाव करने वाले कीपर हैं, देखभाल करने वाले जू के, वो सब ने कहा कि वाज फ्रेटिंग, माने धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, कमजोर हो रहा है, बिकमिंग वीक। देन व्हाट हैपेंड, यहाँ आप देखेंगे बेटा कि जानवर जो होते हैं ना उन्हें एक केज में रखा गया, और इससे पहले जानवर क्या था, वो फ्री था, मतलब फ्रीडम था। तो जानवर जो है या ह्यूमन बीइंग हो, सबको फ्रीडम चाहिए। जब फ्रीडम था उसके पास तो वह अच्छी तरह से तंदुरुस्त था, खुशहाल था। लेकिन जैसे ही वह जू में गया, वह धीरे धीरे जो है वह खाना छोड़ दिया और इस प्रकार वह दुबला पतला होते चला गया और उदास रहने लगा। देयर वाज नो चार्मिंग, अब वो खुशी उसके चेहरे पर नहीं थी। फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर। मैंने क्या किया, 3 महीने तक अपनी पत्नी को उसके पास जाने नहीं दिया। मेरा दोस्त गया घूमने के लिए, लेकिन मैंने अपनी पत्नी को वहां नहीं भेजा। राइटर ने कहा कि मेरे दोस्त गए, फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर, बट माई वाइफ नॉट। For 3 months, I managed to restrain my wife from visiting Mysore. Then she said one day, तब एक दिन मेरी पत्नी ने बोला, I must see Baba. Either you take me by car or I will go myself
by bus or train, so I took her by car. एक दिन मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे बाबा से मिलने चलना चाहिए। यदि आप चाहे तो आप कार से भी चल सकते हैं। यदि आप कार से नहीं ले जाएंगे मुझे, तो आई विल गो माई सेल्फ, मैं खुद ही चली जाऊंगी बस से या ट्रेन से। यदि आप मुझे नहीं ले जाएंगे तो मैं जो है खुद चली जाऊंगी। क्योंकि वो इतना प्यार करती थी कि अब वह उसके बिना रह नहीं सकती थी। इसलिए उनकी पत्नी ने कहा कि यदि आप मुझे नहीं ले जाएंगे ना, तो मैं खुद चली जाऊंगी देखने के लिए बियर को। लेकिन हुआ क्या? सो आई टुक हर बाई कार, इसलिए राइटर ने उसे कार से ले गए। फ्रेंड्स had conjectured that the bear would not recognize her. दोस्त ने कहा, had conjectured that मतलब उस पर जो है प्रत्यारोपण किया, समझाया कि यह जो भालू है ना, अब उससे पहचान नहीं सकता है। would not recognize her, recognize करना मतलब आइडेंटिफाई कर लेना, पहचान कर लेना। दोस्त ने कहा कि वह जो